वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे का संग बुनियाद रखा। इस मुजस्समे की नकाबकुशाई 9 दिसंबर को होगी। 9 दिसंबर 2009 को उस वक्त के मरकजी वज़ीर फाइनेंस पी चिदम्बरम ने तेलंगाना की तश्कील का ऐलान किया था। उस दिन दिए गए बयान की अलामत के तौर पर जारिया साल 9 दिसंबर को इस मूर्ति की नकाबकुशाई की जाएगी। విజ్ఞప్తులను వాళ్ళ యొక్క సమస్యలను తెలియజేయడానికి ముఖ్యంగా మంత్రులు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండాలి. ఇది సచివాలయ విధి విధానాలు. కానీ 10 సంవత్సరాలు మంత్రులు కానీ ముఖ్యమంత్రి కానీ ఆనాటి ప్రజాప్రతినిధులు ఎవరు కూడా ప్రజలకు అందుబాటులో లేకపోవడం, ప్రజలకు సచివాలయంలోకి ప్రవేశమే నిషేధం జరిగింది. అదేవిధంగా తెలంగాణ తల్లి విగ్రహం 10 సంవత్సరాలు వాళ్ళు ఏర్పాటు చేయలేదు. దాదాపుగా 22.5 లక్షల కోట్ల రూపాయల ఈ 10 సంవత్సరాల ప్రభుత్వం ఆనాటి ప్రభుత్వం ఖర్చు పెడితే తెలంగాణ తల్లి విగ్రహానికి అయ్యే 1 కోటి రూపాయలు అవుతుండొచ్చు మహా అంటే. అయినా వాళ్ళకు మనసు రాలేదు, తెలంగాణ తల్లి విగ్రహం పెట్టలేదు. ఈరోజు దేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన శ్రీ రాజీవ్ గాంధీ గారి విగ్రహం ఇక్కడ ఒక పక్కన డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి విగ్రహం, ఆ పక్కన శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారి విగ్రహం, ఆ పక్కనే పివి నరసింహారావు గారి విగ్రహం, ఇంకొక పక్కన అంజయ్య గారి విగ్రహం, ఆ పక్కన కాకా వెంకటస్వామి గారి విగ్రహం, వీళ్ళందరి విగ్రహాలు నెక్లెస్ రోడ్లో జైపాల్ రెడ్డి గారి సమాధులు, ఇవన్నీ కూడా ఈ దేశము ఈ రాష్ట్రము యొక్క ఏర్పాటులో కీలక పాత్రలు పోషించిన వాళ్ళ యొక్క గుర్తింపు ఆనవాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నాయి. మరి ప్రధానంగా ఇందరి ఉన్న దేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన రాజీవ్ గాంధీ గారు లేకపోవడం ఒక లోటుగా భావించినము. ఆ పక్కన అమరవీరుల స్తూపం తెలంగాణ కోసం అమరులైతే సచివాలయానికి అమరవీరుల స్తూపానికి మధ్యలో దేశం కోసం అమరుడైన రాజీవ్ గాంధీ గారి విగ్రహం ఉండాలి. ఎందుకంటే మాజీ ప్రధానమంత్రి ఇందిరాగాంధీ గారి విగ్రహం, పివి నరసింహారావు గారి విగ్రహం, వారితో పాటు రాజీవ్ గాంధీ గారి విగ్రహం ఉండాలని. सीताराम बाग में कल फर्नीचर की दुकान में बड़े पैमाने पर आग लग गई। मुकामी अफराद ने इस आग के साथ कसीर धुएं को देखकर फायर ब्रिगेड के अमले को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है। अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान ज़रूर हुआ है। बीआरएस की एमएलसी कविता कल शाम तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहा हो गई। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद कविता मंगल की शाम 7 बजे के बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल से बाहर आ गई, जहां जेल के बाहर बीआरएस के अहम कायदीन ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर उनके फर्जंद और दीगर अरकान ख़ानदान के साथ उनकी जज्बाती मुलाकात हुई। कविता अपने अरकान ख़ानदान को देखकर जज्बात पर काबू नहीं रख सकी और अश्कबार हो गई। इस मौके पर जज्बाती मनाजिर देखे गए। जेल से रिहाई के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बच्चों को छोड़कर 5.5 माह तक जेल में रहना कोई आसान बात नहीं है। उन्होंने कहा कि वो केसीआर की बेटी हैं और गलत करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। देश जानता है सिर्फ राजनीति की वजह से हमें जेल में डाला गया है, हमारा कोई गलती नहीं है और ये जरूर हम फाइटर है, हम लड़ेंगे, हम अपने आप को बिल्कुल बेगुनाह साबित करेंगे। थैंक यू सो मच। जय तेलंगाना। ఎవరి గురించి చెప్పే అవసరం లేదు, మనము నేను తెలంగాణ బిడ్డను, నేను కేసీఆర్ బిడ్డను, నేను తప్పు చేసే ప్రసక్తే లేదు,
నేను మొండిదాన్ని మంచిదాన్ని అనవసరంగా జైలుకు పంపి నన్ను జగమొండిని చేసిండ్రు. ఇంకా ప్రజాక్షేత్రంలో గట్టిగా పనిచేస్తాం, కమిట్మెంట్ తో పనిచేస్తాం, అందరితో కూడా నిలబడి ఉంటామని తెలియజేస్తున్నాం. దే were always tough. We are fighters. We will fight it out legally. We will fight it out politically. We were always tough. By sending us to jail illegally, they only made BRS and KCR's team unbreakable. Thank you. Jai Telangana, Jai Hind. कोड़ंगल हलके के दुधियाला मंडल में फार्मा विलेज के क़याम की मुकामी किसानों की जानिब से मुखालिफत की जा रही है। इन किसानों ने MRO के दफ्तर के सामने एहतजाज किया। इसी एहतजाज के दौरान एक खातून किसान ने कीड़े मार दवा पीने की कोशिश की, ताहम मुकामी अफराद और इसके साथी किसानों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। काचीगुड़ा पुलिस ने अंदरून 12 घंटे एक साला लड़की के अगवा के मामले को हल करते हुए अगवा कुनिंदा खातून को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि 27 अगस्त को काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन के पास से लड़की का अगवा किया गया था। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके 6 खुसूसी टीमें तश्कील दी थी और अगवा कुनिंदा खातून दासरी मंजुला को कल दबीरपुरा रेलवे स्टेशन के करीब से गिरफ्तार करते हुए उसके पास से लड़की को बहिफाजत आज़ाद करवा दिया गया। Today early morning at 2 o'clock, we received a complaint from the victim, a mother of 3 childs, saying that her 1-year-old child was missing in the railway station when she was sleeping at the time. She was missed. So, based on her complaint, we registered a kidnapping case and verified the CCTV footages. And in that CCTV footages, we found a lady took that 1-year-old girl and traveling through auto. Based on that CCTV footages, we verified around 50 to 60 cameras throughout the state, throughout the Hyderabad, and we found that accused lady at Dabirpura railway station, where we rescued the 1-year-old girl from her, and we took her and we handed over to the victim mother. In this one, this accused girl, Dasari Manjula, she hails from Kamareddy district, and she came in the yesterday along with her 2 children. When she was in the Kachiguda in last 2 months back, she had a quarrel with this victim mother regarding this 1500 who took from her. So for teaching her a lesson, she was kidnapped, that girl, and she roamed around the city only. Based on this CCTV footages, we caught her and we remanded her. जश्न आज़ादी हिंद के ज़िमन में मीना हॉस्पिटल की खुसूसी पेशकश। आइए अमराज से आज़ादी व छुटकारा पाएं। 15 जुलाई था 15 अगस्त मुफ्त हेल्थ कैंप। गरीब व जरूरतमंद मरीजों के लिए खुशखबरी। तमाम अकसाम के मुआयनाजात पर 20% डिस्काउंट। रजिस्ट्रेशन जारी है। माहिरीन तिब व सेहत से मुफ्त मुशावरत। सेहतमंद मुआशरे की तश्कील का जामिन। आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर्स की खिदमत। बेहतरीन इलाज व मुआलजे की सहूलतें। असरी तकाज़ों और मिशनरी से लेस शानदार दवाखाना। आवाम की खिदमत थी मीना हॉस्पिटल का नस्बुलैन। मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवरामपल्ली, राजेंद्र नगर, पिलर नंबर 254, हैदराबाद। कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने कहा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर एक मेगा जॉब मेला मुनक़िद किया जा रहा है। ये जॉब मेला हफ्ता 31 अगस्त को
महबूब प्राइड पैलेस पिलर नंबर 102 में मुनक़िद किया जाएगा, जिसके औक़ात 9 बजे दिन ता 3 बजे से पहर होंगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि 28 अगस्त को कामयाब रिज्यूम किस तरह तैयार करें उसकी तरबियत दी जाएगी। 29 अगस्त को इंटरव्यू का सामना करने के मुख्तलिफ मशवरे दिए जाएंगे। डेट देने के बाद और उनसे मंजूरी लेने के बाद कई कंपनियों से भी बातचीत करें। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह आने वाले 21 तारीख के दिन इस जॉब मेले के अंदर सिर्फ कारवान के नहीं, मैं समझता हूँ आजू बाजू के, चाहे राजनगर के हो या नारसिंगी के हो या चवेल्ले के हो, और मेरे हल्के कारवान के अंदर पिछले 8 दिन से जो मेरे कारवान के अंदर जो ख़वातीन का जो डिग्री कॉलेज है और जो जूनियर कॉलेज है गोलकुंडे के अंदर, जो साबिक़ा में आज से साल पहले जितने भी लड़कियां डिग्री कर चुके हैं मुकम्मल, उनके पास भी कॉलेज के ज़रिए इन्फॉर्म किया गया। उसी तरीके से कारवान मुस्ताहिदपुरे के अंदर जो मैस्को कॉलेज है, उस मैस्को कॉलेज के ज़िम्मेदार जनाब गौस साहब, जनाब डॉक्टर नईम साहब, उनकी तमाम लोग से ये हमारे AMP के जो जिम्मेदार है ऑर्गेनाइजर जनाब सईद भाई साहब, जनाब आमिर साहब भी उन तमाम जिम्मेदारों से मैस्को के और गोलकुंडा डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल से और उनके तमाम खवात बच्चियों के जिम्मेदारों से बात करें, और उन्होंने इंशाल्लाह 21 तारीख के दिन इस जॉब मेले के अंदर हिस्सा लेंगे। जहाँ तक हो सकता मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाली 21 तारीख के दिन जॉब मेला सक्सेसफुल होगा और हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाके जात के भी यहाँ पर कई लड़के लड़कियाँ आकर इस जॉब मेले के अंदर हिस्सा लेकर नौकरी के लिए कोशिश करनी है, क्योंकि मेरा हल्का कारवान एक ऐसा हल्का है जो कई बड़े बड़े कॉलेज भी है, कई बड़े स्लम्स भी है। जिला हनमकुंडा में डेंगू के सबब एक लड़की की मौत हो गई। इस लड़की की शिनाख्त 11 साला प्रवलिका के तौर पर की गई है। वो तत्कियाला गांव की रहने वाली है। चंद दिन पहले उसे बुखार आया था, जिसके बाद हनमकुंडा के दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने डेंगू की तस्दीक की। उसे बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद के खानगी दवाखाना ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हालत नशे में खवातीन के साथ बदसलूकी करने वाले शख्स की पिटाई करते हुए उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। ये वाक़या जिला जगतियाल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कल शब ज़िले के अन्नापूर्णा स्क्वायर पर एक शख्स ने हालत नशे में खवातीन से बदसलूकी की। इसकी यह हरकत देखकर मुकामी अफराद ने इसकी पिटाई कर दी, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गया। उसे बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। అన్నపూర్ణ చౌరస్తా గొడవ వచ్చింది, కాల్ వచ్చింది సార్. వచ్చినప్పుడు కొట్టి పడబెట్టి ఎవరు తెలియదు సార్. 50 మంది కొట్టని చెప్పి నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ సార్. వచ్చిన హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేసి రేపు మార్నింగ్ చూసుకుంటాను. ओयू रूम में खुफिया कैमरा लगाने पर मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया। ये वाक़या शमशाबाद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक एक जोड़े ने ओयू होटल में कमरा बुक किया, जहां पर जाने के बाद इस जोड़े ने वहां एक खुफिया कैमरा पाया। इस बात की शिकायत आज पुलिस से की गई। बताया जाता है कि होटल का मैनेजर जोड़ों की निजी सरगर्मियों की वीडियोज इस कैमरे में कैद करते हुए उनको ब्लैकमेल करने का काम करता था। इस जोड़े की शिकायत के बाद पुलिस वहां पहुंची, जिसने खुफिया कैमरे को जब्त कर लिया और होटल मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। महकमे आबकारी के अहदेदारों ने जिला संगारेड्डी में 83 किलो गांजा जब्त कर लिया। इस गांजे को महाराष्ट्र मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस ने एक इत्तला पर इस गांजे को जब्त कर लिया और गांजे की मुंतकिली के लिए इस्तेमाल कार को भी जब्त कर लिया गया। राजस्थान में शदीद बारिश के नतीजे में 2 लारियां बह गई। ये वाक़या निबोल दरिया के करीब जयतरम इलाके में पेश आया। इस इलाके में शदीद बारिश हुई, जिसकी वजह से सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई और सड़क पर ये लारियां बह गईं। 3 अफराद तैराकी के बाद वापस आने में कामयाब हो गए। जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान,
German trained senior orthopedic surgeon and director, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।